गाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. We may be seated. Ladies and gentlemen, welcome to the swearing-in ceremony of the Chief Minister and new Council of Ministers of Nagaland. We are greatly honored by the presence of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and a host of other dignitaries from all over the country. We thank the students of the Music Academy Kohima for leading us in singing the national anthem. We will now have the prayer of invocation, followed by the Hallelujah Chorus by the Cantamus Choir of the Task Force for Music and Arts. We now call upon Mr. Timjan Mungba Sampu, Pastor, Kohima Ao Baptist Church, for the prayer of invocation. Let us look to the Lord in prayer. Abba Father, we want to pray and thank you for this day wherein, Lord, the Chief Minister along with the Council of Ministers shall be sworn in. We pray and thank you for our nation, the largest democracy, and Lord, for blessing this nation with wonderful people and efficient leaders. We want to thank you, Lord Jesus, for the leadership that has been blessed for our nation under the efficient leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. We pray the Lord, you will bless him and this nation. Today we pray for the swearing in of the Chief Minister and the Council of Ministers. The Lord, led by our most honored to be Chief Minister Shri Nefurio and the Council Ministers, Lord, I pray, Abba Father, that your blessings will be upon them. The Lord, you will lead them in your wisdom to deliver justice to the people, to lead the state in accountability to the people who has chosen them, to, Lord, be transparent in the administration and the governance, Lord, to, Lord, be equal to every section of the communities in the state, Lord, that, Lord, secularism will be, Lord, practiced and upheld, Lord Jesus, with utmost respect. We also, Abba Father, pray the Lord, they will uphold the law of rule, Lord, and that, Lord, these governments will bring about peace, joy, and prosperity to the people. That as they do so, Lord, this state will prosper along with the other states of the nation. The Lord, you will also bless the leaders of the state, led by our Chief Minister, with long life and good health as well. Thanking you, committing the rest of the time of the swearing-in ceremony unto your hand, we pray this in Jesus' name. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah.
Thank you, Cantamus Choir, for the beautiful song. We now hand over the time to the Chief Secretary, Government of Nagaland, to open the proceedings for the swearing-in ceremony. Chief Minister Shri Nifiorio, I, Sri Nipurio, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister of the State of Nagaland, and that I will do right to all matters of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affections or ill will. I, Sri Nipurio, solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the State of Nagaland, except as may be required for the due discharge of my duties as such Chief Minister. Deputy Chief Ministers Shri Taditui Rangkau Ziliang, I, Sri Tia Ziliang, do swear in the name of God that I'll bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Deputy Chief Minister for the State of Nagaland, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Sri Tia Ziliang, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Deputy Chief Minister for the State of Nagaland, except as may be required for the due discharge of my duties as such Deputy Chief Minister.
Congratulations. श्री यंथोंगो पैटर्न। I, Yanthongo Patton, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Deputy Chief Minister for the state of Nagaland, and that I will do right to all manners of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Yanthongo Patton, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Deputy Chief Minister for the state of Nagaland, except as may be required for the due discharge of my duties as such Deputy Chief Minister. congratulations. कैबिनेट मिनिस्टर्स श्री जी काइतो आइए। I, G. Kaitoya, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Minister for the State of Nagaland, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, G. Kaitoya, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister for the State of Nagaland, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. Congratulations.
श्री जेकॉब जिमोमी, I, Jacob Zimomi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Nagaland, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Jacob Zimomi, solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Nagaland, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Listen better. Congratulations. श्री के जी केन्ये, I, KGKD, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Nagaland, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, KGKD, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Nagaland, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. congratulations. श्री पी पायवांग कोन्याक, I, P. Paiwang Konyak, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India,
by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the State of Nagaland, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear of favor, affection or ill will. I, I, P. Paiwang Konyak, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the State of Nagaland, except as may be required for due discharge of my duties as such Minister. Shri Metsubo Jamir. I, Metsubu Jamir, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the State of Nagaland, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Metsubu Jamir, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the State of Nagaland, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. Shri Temjen Imna Along. I, Temjen Imna Along, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the State of Nagaland, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Temjen Imna Along, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the State of Nagaland, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. very happy, congratulations.
Shri C.L. John. I, Shri C.L. John, do swear in the name of God that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a minister for the state of Nagaland, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution in the law without fear or favor, affection or ill will. I, C.L. John, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known as to me as a minister for the state of Nagaland, except as may be required for the due discharge of my duty as such minister. Congratulations. Shrimati Salo Tonio Cruce. I, Salutunio Cruce, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Nagaland, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Salutunio Cruce, solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Nagaland, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Shri P. Bashangmong Bachang. I,
B. Bashangmong Bajang, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Nagaland, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, B. Bashangmong Bajang, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Nagaland, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Okay. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we will now have a special song, This Is Me, brought to us by the bright lights of the Task Force for Music and Arts. This is
for that beautiful performance. Ladies and gentlemen, after the national anthem, the Honorable Prime Minister and the Honorable Governor will proceed downstairs for a group photograph with the Honorable Chief Minister and the Council of Ministers. We request all guests to kindly remain seated in the hall until the Honorable Prime Minister departs the venue. Ladies and gentlemen, we now request you to rise for the national anthem. बिजनौर के चांदपुर में सौभाग्य गार्डन चांदपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 126 युगल दाम्पत्य बंधन में बंधे। इनमें 117 हिंदू व 9 मुस्लिम जोड़े हैं। ब्लॉक प्रमुख कुंतेश देवी ने शादी में मौजूद रहकर नवदंपति को आशीर्वाद दिया। ब्लॉक प्रमुख ने जलीलपुर के विवाह समारोह में प्रतिभाग किया, साथ ही सभी नवयुगल के सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की है। दरअसल आपको बता दें कि चांदपुर के सौभाग्य गार्डन में शासन से जरूरतमंद युवक युवतियों का भविष्य संवारने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित है। योजना 2 स्तर पर संचालित है। जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा कामकाज देख रहे एडीओ समाज कल्याण विभाग जलीलपुर के आशीष कुमार ने बताया कि एक शादी में 51,000 रुपये खर्च होते हैं। सोमवार को जलीलपुर ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 126 शादियां हुई हैं। इसमें 117 हिंदू व 9 मुस्लिम जोड़ों की शादी हुई है। ब्लॉक प्रमुख कुंतेश देवी ने बताया कि सरकार द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और ब्लॉक प्रमुख कुंतेश देवी व विकास खंड अधिकारी ओमवीर सिंह ने वर वधू को आशीर्वाद प्रदान किया और उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर इसमें शांति कुंज हरिद्वार से पदाधिकारियों ने विवाह संपन्न कराया। कार्यक्रम में कपिल चौधरी, ब्लॉक प्रमुख पुत्र गौरव लांबा, वीरेंद्र राजपूत, विनीत लांबा, अनिल कुमार, एडीओ पंचायत संजीव कुमार, ग्राम सचिव आदि मौजूद रहे। देखिए गौरव त्यागी की रिपोर्ट। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कितने जोड़े यहाँ पर हिंदू के और मुस्लिम के हैं, बताइए। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो सामूहिक विवाह संपर्क हो रहे हैं, इसमें 126 जोड़े, कुल 126 जोड़े हैं। इनमें 117 जोड़े हिंदू और 9 जोड़े मुस्लिम, इनके सबको उपहार सम्मान देकर और इनके सामूहिक विवाह संपूर्ण कराया जा रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप इन जोड़ों के लिए? क्या कहना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप? आशीर्वाद तो योगी जी का है जी। तो इतना बड़ा मतलब खर्च करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। सब गरीब। अच्छा, ये कौन से ब्लॉक दोबारा किए जा रहे हैं? ये ब्लॉक जलीलपुर खंड विकास जलीलपुर के द्वारा कराए जा रहे हैं। जी जी। माननीय हमारे विकास खंड अधिकारी ओमवीर सिंह। पहले भी आपके द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? खुशी का? खुशी के लिए मतलब बहुत बहुत बधाइयाँ हैं उनकी। जितना भी उनकी तारीफ की जाए योगी जी की, मोदी जी की, उनकी योजना के अंतर्गत इतनी ही कम है। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पत्नी की हत्या कर पति ने थाने में किया आत्मसमर्पण। आपको बताते चले कि घरेलू कलह में की 28 वर्षीय पत्नी आशा की गला घोंटकर हत्या। देर रात मदद के लिए पत्नी ने बुलाई थी डायल 112 पुलिस, सुबह हो गई हत्या। आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद, घटना की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के खुशहालपुर गांव का मामला। देखिए शारिक निजाम की रिपोर्ट।
मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र की नई बस्ती में गांजा और नशीले पदार्थ की बिक्री बड़े स्तर पर चल रही थी, जिसकी लगातार थाना क्षेत्र पुलिस को सूचना भी मिल रही थी। शशि नाम की महिला जो काफी समय से नशीले पदार्थ बेचकर बड़े स्तर पर अमीर बनना चाहती थी, जिसको आज सीओ ब्रह्मपुरी के आदेश पर थाना टीपी नगर पुलिस ने घर पर छापा मारकर 12 लाख रुपए और नशीला पदार्थ की खेप को बरामद किया। वहीं एसपी सिटी का कहना है कि शशि नाम की महिला पर पहले भी कई मुकदमे चल रहे हैं और मामले की जांच की जा रही है। किस किस तरीके से नशीले पदार्थ को मेरठ लाया जा रहा था। नगर क्षेत्र अंतर्गत नई बस्ती में एक शशि नाम की महिला, जिसके खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कई अभियोग पंजीकृत हैं, इसके बारे में स्थानीय पुलिस को लगातार ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि इसके द्वारा अवैध रूप से पुनः गांजे की तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर आज क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी के नेतृत्व में टीपी नगर पुलिस के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें इस महिला के घर से भारी मात्रा में ये पैकेजिंग के सामान, अवैध गांजा और इसके साथ साथ 12 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। इन सब की जांच पड़ताल की जा रही है कि इनके सोर्स क्या हैं और इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। इस संबंध में आगे की कार्रवाई प्रचलित है। जनपद मैनपुरी के थाना कुरावली पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच रात्रि 8 बजे के समय मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान अन्य थानों की पुलिस ने बदमाशों का घेराव करते हुए 3 बाइकों पर सवार 7 बदमाशों में से 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला? कुरावली थाना प्रभारी विनोद कुमार शर्मा मैफोर्स के क्षेत्र के गैला नाथ पुल के समीप कुरावली घिरोर बाईपास रोड पर वाहन चेकिंग कर रहे थे कि तभी 3 बाइकों पर सवार 7 बदमाश पुलिस को देखकर अपनी बाइकों को मोड़कर वापस भागने का प्रयास करने लगे। तभी पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। बदमाशों को भागता देख थाना प्रभारी ने तत्काल बदमाशों की घेराबंदी के लिए थाना बिछवा प्रभारी अमित सिंह, एसओजी प्रभारी राजेश कुमार के अलावा थाना ओछा प्रभारी को सूचना दी। क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। तीनों प्रभारी आसपास होने के कारण आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घेराबंदी की। तभी बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है व अन्य 4 बदमाशों को 2 बाइकों सहित गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 अभियुक्त भाग जाने में सफल हो गए। देखिए गौरव पांडे की रिपोर्ट। और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, किस तरह की मुठभेड़ थी, क्या पूरी घटना थी? ये आज हमारे इंस्पेक्टर कुरावली विनोद कुमार और अमित सिंह यसो बिछवा और ये जो औसा इंस्पेक्टर हैं धर्मेंद्र, ये लोग चेकिंग कर रहे थे घिरोर बाईपास पे कुरावली में। तो 3 मोटरसाइकिलों से 7 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। तो इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया, तो रुक के नहीं बल्कि बैक होकर के भागने लगे। तो हमारी पुलिस पार्टी ने इनको घेराबंदी का प्रयास किया, पीछा किया, तो ये लोग फायरिंग करने लगे। पुलिस ने इनको पकड़ने के लिए आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें से एक बदमाश जो मोहम्मद हाशिम नाम का है, जो नवाबगंज फर्रुखाबाद का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है। और 4 बदमाश जो 2 एटा जनपद से संबंधित है, इसमें एक मोहम्मद हुसैन है और एक जानी उर्फ ऋषभ है जो एटा के हैं, और एक कलाम है, ये सीतापुर का रहने वाला है, और एक अभय है जो कुरावली का रहने वाला है। ये 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक के घायल हुआ है जो पैर में गोली लगी है, जिसको अस्पताल भेजा गया है। और 2 इन्होंने जो पूछताछ पर बताया है कि इरफान और आशीष जो कुरावली के रहने वाले हैं, ये एक मोटरसाइकिल में भाग गए हैं। तो यहाँ पर मौके से 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, 5 से अवैध असलहे बरामद हुए हैं, भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने इनके कब्जे से कुछ ज्वेलरी मिली है, और इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने 1 अक्टूबर के महीने में कुरावली थाना क्षेत्र में ही एक बड़ी चोरी की घटना किए थे, जिसको इन्होंने स्वीकार किया है। उसी से संबंधित इन्होंने माल भी बताया है। इसके अलावा
ये औछा में और कोतवाली में कुछ अन्य घटनाओं को भी बता रहे हैं, जिनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी दी जा रही है। फरार बदमाश कितने हुए हैं? 2 बदमाश फरार हुए हैं, वो कुरावली क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जिनके लिए अभी हम लोग पूरी तलाश कर रहे हैं। कितनी थानाध्यक्ष फोर्स सर मौके पर आ गई थी स्पॉट पे? सभी थानाध्यक्षों को अलर्ट किया गया है। अभी भी हमारी चेकिंग जितने नाकेबंदी की जा रही है जो जनपद के बॉर्डर के हैं और जो भागने का जगह बताई गई कि इस रास्ते से भागे हैं, तो हम सभी जगह अभी भी नाकाबंदी कर रहे हैं, उनकी घेराबंदी का प्रयास कर रहे हैं, उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज फिरोजाबाद में पुलिस और राजस्व टीम ने मिलकर देह व्यापार चलाने वाले होटलों व मकानों पर कार्रवाई की, जिसमें एक मकान में छापेमारी कर आपत्तिजनक स्थिति में मिले 8 जोड़ों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं देह व्यापार कराने वाले व्यक्ति को भी मौके से गिरफ्तार किया। हालांकि पकड़े गए सभी जोड़ों के परिजनों को बुलाकर व उन्हें समझा बुझाकर उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। दरअसल मामला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां बाईपास पर बने तमाम होटल रेस्टोरेंट की आड़ में देह व्यापार का धंधा बिना किसी डर बह के चला रहे हैं। जिस देह व्यापार की सूचना काफी दिन से पुलिस व वरिष्ठ अधिकारियों को मिल रही थी। सूचना की सत्यता को देखते हुए शिकोहाबाद तहसील के एडीएम ध्यानचंद पांडे, क्षेत्राधिकारी देवेंद्र सिंह के साथ साथ शिकोहाबाद थाना प्रभारी अरविंद मिश्रा ने पुलिस बल के साथ एक मकान में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मकान में 8 जोड़े आपत्तिजनक स्थिति में मिले। हालांकि मिलने वाले लड़के लड़कियों के घर सूचना देकर उनके परिजनों को मौके पर बुला लिया गया और समझा बुझाकर उनको उनकी सुपुर्दगी में दे दिया। वहीं गलत काम करा रहे संचालक को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में लगभग 70% होटल रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहां पर रेस्टोरेंट की आड़ में धड़ल्ले से देह व्यापार संचालित हो रहा है। सर ये क्या सूचना है सर? थाना शिकोहाबाद को एक सूचना मिली थी कि एटा चौराहे के पास एक मकान में अवैध गतिविधियां संचालित है। तत्काल जो हम मौके पर पुलिस पहुंची है तो उसकी छानबीन की गई मकान की, तो वहां से लगभग 43 क्वार्टर गैर प्रांत शराब के मिले हैं और 320 ग्राम चरस मिली है। मौके से एक व्यक्ति सुकेंद्र यादव गिरफ्तार किया गया है और बाकी 2 लोग विमलेश शिवम और गुलशन जो है भागे हुए हैं और मामले की ओर जाँच की जा रही है। और ये भी सुनने में आया कि ये नीचे जो है अपना कमरा किराए से देते हैं लड़के लड़कियों को, तो इस पर जांच की जा रही है और विधायक कार्रवाई की जा रही है। जनपद बहराइच के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने विपक्ष पर करारा वार करते हुए कहा कि जिसका दामन साफ है उसे जांच एजेंसियों से डरने की क्या आवश्यकता है। अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां अपना निष्पक्षता से कार्य कर रही है। अगर आप ईमानदार हैं, पाक साफ है, तो आपको सहयोग करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड के 16 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर अनिल राजभर ने कहा कि पुलिस पूरी तन्मयता के साथ अपना काम कर रही है। जितने भी आरोपी हत्याकांड में शामिल हैं, उन सभी की कुंडली खंगाली जा रही है। अगर आरोपी पाताल में भी होंगे तो भी उन्हें हम खोज निकालेंगे। सूत्रों की माने तो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों के नेपाल फरार होने की आशंका जताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि नेपाल भागने से पहले गुड्डू मुस्लिम एवं असद बहराइच के एक होटल में रुके थे, उसके बाद नानपारा के रास्ते नेपाल फरार हुए थे। देखिए अखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है वो जांच एजेंसियों का ऐसा इस्तेमाल करे जैसे कांग्रेस करती थी और आगे चल के बीजेपी भी कांग्रेस की तरफ हो जाएगी। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी से, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और सभी विपक्ष के लोगों से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जिसका दामन साफ है उसको डरने की क्या आवश्यकता है। अगर किसी के जीवन पर या किसी भी प्रकार के किसी भी आरोप की हमारी एजेंसियां कोई जांच कर रही है और आप ईमानदार हैं, तो आपको डरने की क्या आवश्यकता है। आप एजेंसी का सामना करिए। आप सही रहेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें काम करने वाले हमारे जो ईमानदार लोग हैं, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए इस तरह का प्रयास विपक्ष की तरफ से हो रहा है और इस तरह की टिप्पणियां निश्चित तौर पर संस्थाओं को कमज़ोर करती हैं, कहीं न कहीं
उनके मनोबल को प्रभावित करने का काम करती हैं। राहुल गांधी विदेश में जाकर उमेश पाल की हत्या को 16 दिन बीत चुके हैं। 2 अपराधी ढेर हुए हैं, 1 पकड़ा गया है। सबसे बड़ा सवाल इसमें यह खड़ा होता है कि 16 दिन बीतने के बाद भी अभी सभी अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। खास करके गुड्डू मुस्लिम और असद के बहराइच से नानपारा से होते हुए नेपाल भागने की सूचना बताई जा रही है। बहराइच में रुकने की सूचना बताई जा रही है, ऐसा STF के सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है। क्या पुलिस को फेल्योर मानते हैं आप? नहीं, कहीं भी नहीं। हमारे पुलिस के लोगों ने बहुत ही बहादुरी के साथ काम किया है, आगे भी कर रहे हैं। हम जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहते। जो गुनहगार हैं उनको सजा मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। और आप सबके माध्यम से आप सभी के सम्मानित दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूं कि अपराधी पाताल में भी रहेंगे तो वो बच नहीं सकते, उनको खोज निकाल। सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे तो करती है, पर जिले के पुलिस विभाग सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। जहां जनपद के अधिकारी पीड़ित युवती से मिलने को तैयार नहीं। पीड़ित युवती ने जान का खतरा बताया और इंसाफ की गुहार लगाई है, पर पुलिस ने एक ना सुनी। जहां युवती ने एक वीडियो बनाकर वायरल कर उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है कि उसके भाई और उसकी जान को खतरा है। उनकी प्रॉपर्टी को लेकर एक महिला उनकी हत्या कर सकती है। सहारनपुर के बेहट रोड स्थित भगवती कॉलोनी के निकट एक घर में रह रहे 2 नाबालिग बच्चे, जिनके माँ बाप कोविड में मर चुके हैं, कि घर में एक महिला मेन गेट फांद कर घुसी और दोनों बच्चों को जान से मारने की और उनकी हत्या करने की धमकी दे रही है। दोनों बच्चे को थाना कोतवाली देहात से तथा SSP सहारनपुर के गेट से ही बिना उनकी बात सुने सोमवार को आने तथा कोर्ट जाने की बात कहकर टरका दिया गया। अभी भी जबरदस्ती घर में घुसी पीड़ित बच्ची का कहना है कि उक्त महिला अपने गुंडों को रात में किसी भी समय बुलाकर दोनों बच्चों की हत्या करा देती है, तो कौन जिम्मेदार होगा। उक्त लड़की के हवाले से प्राप्त उक्त सूचना के अनुसार ये बच्चे सुबह से अधिकारियों के घरों के चक्कर लगाकर थक हार कर और रात में किसी अनहोनी की आशंका के कारण ऐसा लगता है कि ये वीडियो तथा उक्त महिला के घर के मेन गेट को फांदते हुए CCTV फुटेज जारी किए गए हैं। देखिए जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम तान्या है। मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को एक बार जरूर देखें और हो सके तो मेरी सहायता करें, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। इस वजह से ये वीडियो भी बनाना पड़ रहा है। मेरे माताजी की मृत्यु जब हम छोटे थे तब हो गई थी। मेरा एक छोटा भाई है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पिताजी की मृत्यु कोविड के दौरान हो गई। मेरी माताजी की मृत्यु के बाद में मेरे पिताजी ने हमारा ख्याल रखने के लिए एक ममता नाम की महिला को ले आए थे, जिसकी वजह से वो घर में रहती थी और हमारे साथ ही रहती थी। वो पिताजी की मृत्यु के बाद वो चली गई छोड़कर। उसके बाद में आज वो हमारा घर का मेन गेट कूदकर अंदर आ गई हैं। अंदर आकर बैठ गई। घर पर सिर्फ मेरा भाई था, वो जो कि नाबालिग है, और मैं कॉलेज में थी। 10-15 गुंडों को भी साथ लेकर आई थी, जो कि घर के बाहर खड़े हुए थे। पुलिस वालों को लेकर आई और हाथापाई करने की कोशिश करी। मेरा भाई अकेला था, साथ में कई सारे लोग जो थे उनके वो दबाव बनाने की कोशिश करने लगे। जब मैं पहुंची तो मैंने 112 पे भी कॉल किया, तो पुलिस आई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। कुछ भी कोई हमें ऐसे हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं किया। जो घर है, जितनी संपत्ति है, मेरे और मेरे भाई के नाम है, जो कि मेरे पिताजी ने पहले ही कर दी थी। ये स्लिप है मेरे घर की, जो जिसमें मेरे और मेरे भाई का नाम लिखा हुआ है। ये वसीयत है और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई का नाम, मेरा और मेरे भाई का नाम लिखा हुआ है। अब हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी पे वो आकर बैठ गई हैं और पुलिस की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं मिली। मैं SSP के आवास भी गई, वहां पर मुझे ये कहकर भेज दिया गया कि आप सोमवार को आइएगा, क्योंकि अब छुट्टी है। और जो हमारे घर के पास थाना पड़ता है वहां पर गई, तो उन्होंने भी यही बोला कि आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर आइए और कोर्ट ही अब करेगा। लेकिन अब वो हमारे घर में बैठी है, घर में बैठकर हमें धमकियां दे रही है कि आज अब मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, इस तरीके से, और सारी संपत्ति अपने आप ले लूंगी।
अब आप लोगों से विनती है कि मेरी मदद करें। मेरा भाई छोटा है, मैं भी अभी सिर्फ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और बसपा पर जमकर हमला बोला। सीतापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। वह जीतने के लिए तय नहीं होते, वह इसलिए तय होते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इत्र व्यापारी को मीडिया के माध्यम से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बताया गया, जबकि वह भाजपा का कार्यकर्ता निकला। जिन पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का आरोप था, वह बीजेपी ने सुरक्षित हैं। हम लोग सरकार बनाते बनाते रह गए। अगर हिसाब किताब लगाएं हम तो बताओ कितने वोटों से हारे। अगर समाजवादी पार्टी को 3,50,000 ज्यादा वोट मिल गया होता तो आज बीजेपी की नहीं समाजवादी पार्टी की सरकार होती। देखिए ज्योति कुमार की रिपोर्ट। करने वाला नहीं हूं, जो गलत है वो गलत है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे से दूर एक जगह पर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ, एस्ट्रोनॉमिस्ट। उसने ये तय किया, अपनी रिसर्च करके ये तय किया और रिसर्च में कहा कि सूरज चक्कर धरती का नहीं लगाता है। सूरज अपनी जगह है, धरती को चक्कर लगाना पड़ता है सूरज को। धरती चक्कर लगाती है सूरज का। जब ये बात चर्च के लोगों ने सुनी, उस समय उनके हाथ में सब ताकत थी, फैसला लेने से लेकर के और सब ताकतें थी। उस चर्च ने उस समय सजा सुना दी और कहा कि इसको कैद कर दिया जाएगा। और बरसों कैद रहने के बाद उस साइंटिस्ट गैलीलियो की जान चली गई। और उसी गैलीलियो ने जिसने कहा, साबित किया था कि सूरज अपनी जगह धरती चक्कर लगाती है, और चर्च ये कहता था कि धरती अपनी जगह रहती है, सूरज चक्कर लगाता है। 400 साल बाद जमीनी नेता थे। दादा के न रहने से परिवार को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन नरेंद्र वर्मा जी की राजनीतिक और उनका सहारा, उनकी मदद के लिए जो हमेशा तैयार रहते थे, उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। जहां वो जमीन से जुड़े थे और जमीन पर रह करके लोगों को जोड़ने का काम, और जहां अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ खड़े रहना, अपने साथी के साथ खराब समय पर बुरे वक्त पे खड़ा होना, ये सबसे बड़ी पहचान दादा की थी। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मैं नरेंद्र वर्मा जी, उनके बेटे, उनके परिवार के लोगों को, उत्कर्ष वर्मा, हर्ष वर्मा, सबको धन्यवाद देता हूँ कि सब लोगों को बुला करके ये उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आने वाली पीढ़ी को भी यहाँ से, इस संस्था से प्रेरणा मिलती रहेगी। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू जी के परिवार को देखिए, ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किस पे छापा पड़ रहा है? जो विपक्षी पार्टियां आज मजबूती से खड़ी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो दल जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, उनके नेताओं पर, उनके परिवार के लोगों पर आरोप लगाना और संस्थाओं को भेज देना। आप में से जितने पत्रकार साथी याद कीजिए वो दिन चुनाव से पहले जब एक व्यक्ति के यहाँ छापा पड़ा था और 250 करोड़ रुपया कैश मिला था। उसका झूठा प्रचार ये भारतीय जनता पार्टी ने किया कि समाजवादी पार्टी का इत्र बनाने वाला, परफ्यूम बनाने वाला उद्योगपति के यहाँ 250 करोड़ रुपया निकला। टीवी, अखबारों के माध्यम से समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई, और जब सच्चाई सामने आई तो जिसके यहाँ 250 करोड़ रुपया निकला तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही निकला नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का ही पैसा था। और उसके बाद कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहां छापा ना मारा हो। चुनाव से पहले कैसे बदनाम किया जाए, उसकी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की थी। और भारतीय जनता पार्टी बीएसपी से मिली हुई थी। बीएसपी के प्रत्याशी ऐसे तय किए गए जिससे समाजवादी पार्टी का नुकसान हो। क्या महमूदाबाद की बात ये ठीक नहीं है क्या?
आपके सीतापुर शहर की बात ये ठीक नहीं है क्या? और भी विधानसभाओं की मैं आप बता सकता हूं। इसलिए ये छापे केवल राजनीतिक हैं, केवल विपक्षी दलों को अपमानित करने के लिए जनता ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किस पे छापा पड़ रहा है? जो विपक्षी पार्टियां आज मजबूती से खड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो दल जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, उनके नेताओं पर, उनके परिवार के लोगों पर आरोप लगाना और संस्थाओं को भेज देना। आप में से जितने पत्रकार साथी याद कीजिए वो दिन चुनाव से पहले जब एक व्यक्ति के यहाँ छापा पड़ा था और 250 करोड़ रुपया कैश मिला था। उसका झूठा प्रचार ये भारतीय जनता पार्टी ने किया कि समाजवादी पार्टी का इत्र बनाने वाला, परफ्यूम बनाने वाला उद्योगपति के यहाँ 250 करोड़ रुपया निकला। टीवी, अखबारों के माध्यम से समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई और जब सच्चाई सामने आई तो जिसके यहाँ 250 करोड़ रुपया निकला था वो भारतीय जनता पार्टी का ही निकला, वो भारतीय जनता पार्टी का ही पैसा था। और उसके बाद कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहां छापा ना मारा हो। चुनाव से पहले कैसे बदनाम किया जाए, उसकी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी बीएसपी से मिली हुई थी। बीएसपी के प्रत्याशी ऐसे तय किए गए जिससे समाजवादी पार्टी का नुकसान हो। क्या महमूदाबाद की बात ये ठीक नहीं है क्या? आपके सीतापुर शहर की बात ये ठीक नहीं है क्या? और भी विधानसभाओं की मैं आप बता सकता हूं।